A very good morning student. Bharati College of Engineering and Technology Durg. Course B Computer Science and Engineering. 4th year 7th semester student. Subject on Network Programming. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's our next topic, TCP port ephemeral result. So what is TCP port? TCP means Transmission Control Protocol. What is ephemerals? An ephemeral port is a short-lived transport protocol port for Internet protocol communication allocated automatically from a predefined range by the IPsec software. An ephemeral port is typically used by Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol, or Stream Control Transmission Protocol (SCTP) as the port assignment for the client end of a client-server communication to a well-known पोर्ट ऑन अ सर्वर. जो इफेमरल पोर्ट होता है वो एक शॉर्ट लिव्ड पोर्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है. ये जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. अलोकेटेड ऑटोमेटिकली एलोकेट किया जाता है फ्रॉम द प्री डिफाइंड रेंज बाय द IPsec सॉफ्टवेयर. जो IPsec सॉफ्टवेयर रहता है उसके द्वारा ये प्री डिफाइंड रहता है. इफेमरल पोर्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में और स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में. इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है और ये जो है वो क्लाइंट एंड पर यूज़ होता है. जब हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात करते हैं उस समय ये जो होता है वेल नोन पोर्ट होता है. नेक्स्ट होता है ऑन सर्वर. Ephemeral port may also be used as the port assignment on the server end of a communication. This is done to continue communication with the client that initially connected to one of the server's well-known service listening port. तो ephemeral port जो होता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, सर्वर एंड पर भी यूज होता है और जब क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने के लिए वेल नोन सर्विस प्रोवाइड करता है इफेमरल पोर्ट. फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट प्रोसीजरल कॉल. RPC मीन्स रिमोट प्रोसीजर कॉल. एप्लीकेशंस आर टू प्रोटोकॉल्स दैट कैन बी हियर इन दिस मैनर. नोट that the term server here include workstations. Server means workstations running network services. जितने भी network services होते हैं जो running mode में होते हैं that receive connections initiated from other clients, जो दूसरे client से connection को receive करते हैं. For example remote desk protocol. जो remote desk protocol होता है वो इसके examples हैं. Next one is the allocations are temporary and only valid for the duration of the communication session. After completion of the communication session, the port become available for reuse. After communication फिर से क्या हो जाते हैं reuse. ये जो port है वो available हो जाते हैं reuse के लिए. Since the port are used on the per request basis, they are also called dynamic ports. डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो चेंज होते रहता है, कभी भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या होते रहता है वो चेंज होते रहता है और इस पोर्ट को हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इनपुट आउटपुट एसिंक्रोनस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट? Asynchronous input-output APIs provide
a method for threaded client-server model to perform highly concurrent and memory efficient input-output. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जो होता है वो API प्रोवाइड करता है फॉर थ्रेडेड क्लाइंट सर्वर मॉडल्स. जो क्लाइंट सर्वर मॉडल रहता है उसके लिए ये क्या करता है, मेथड प्रोवाइड करते हैं, APIs मेथड to perform highly concurrent and memory efficient input output. In previous threaded client server models, typically two input output models have prevailed. दो इनपुट आउटपुट मॉडल्स होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए. द फर्स्ट मॉडल डेडिकेट्स वन थ्रेड पर क्लाइंट कनेक्शन. जो फर्स्ट मॉडल होता है वो वन थ्रेड पर क्लाइंट कनेक्शन होता है. एंड एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट एंड ओवरलैप्ड इनपुट आउटपुट रिजॉल्व बोथ दीज डिलिमिनास बाय पासिंग डेटा टू एंड from user buffers after control has been returned to the user application. Asynchronous input output notifies these worker threads when data is available to be read or when a connection has become ready to transmit data. इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जो है वो नोटिफाइज करता है दीज वर्कर्स थ्रेड्स व्हेन, जब डेटा इज अवेलेबल टू रीड और व्हेन अ कनेक्शन हैज टू बिकम रेडी टू ट्रांसमिट डेटा. जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उस समय डेटा भेजने के लिए और रीड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो उस समय जो ये थ्रेड जो होता है वो वर्क करता है. Next, asynchronous input output advantages. So there are various types of advantages. First, asynchronous input output uses system resources more efficiently. Asynchronous input output जो होता है सिस्टम जो है वो बहुत ही efficiently यूज होता है. Data copied from and to user buffers are asynchronous to the application that initiates the request. इसमें यूज़र के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा क्या कर दिया जाता है, कॉपी किया जाता है फ्रॉम वन बफर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. दिस ओवरलैप प्रोसेसिंग मैक्स इफिशियंट. ये जो ओवरलैप प्रोसेसिंग होता है वो बहुत ही इफिशियंट बनाता है यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स. ठीक है, जो मल्टीपल प्रोसेसर्स रहते हैं. एंड इन मेनी केसेस इम्प्रूव्स paging rates because system buffers are freed for reuse when data arrives. जब डेटा अराइव हो जाता है तो इस जो सिस्टम रहता है उसमें बफर का हम ऑटोमेटिकली रीयूज करते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट मिनिमाइजेस प्रोसेस थ्रेड वेट टाइम. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जो है वो वेट टाइम मिनिमाइज करते हैं, प्रोसेस थ्रेड वेट टाइम को. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट प्रोवाइड्स इमीडिएट सर्विस. ये जो होता है वो इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग. जैसी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट डिक्रीजेज द स्लीप एंड वेकअप कॉस्ट ऑन एवरेज. ये जो होता है स्लीप और वेकअप कॉस्ट जो रहता है उन पर कम करता है. ठीक है, जो एवरेज कॉस्ट रहता है उसको कम करता है ये. नेक्स्ट, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट हैंडल्स बर्स्टी एप्लीकेशन इफिशिएंटली. ये जो होता है जो बर्स्टी एप्लीकेशन रहते हैं उसको इफिशिएंटली हैंडल करता है. नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट प्रोवाइड्स बेटर स्केबिलिटी. ये बहुत ही बेटर स्केबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड नेक्स्ट, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट प्रोवाइड द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ हैंडलिंग लार्ज डेटा ट्रांसफर. ये जो होता है लार्ज डेटा ट्रांसफर को इफिशिएंटली क्या करता है, हैंडल करता है. द fill buffer flag on this is a method
quality of service, start, receive. This is a method. API informs the operating system to acquire the large amount of data before completing the asynchronous input output. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के कंप्लीट होने के पहले जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहते हैं उसको इस मेथड के थ्रू, ये जो मेथड है QSO स्टार्ट रिसीव, ये क्या करता है, एपीआई इन्फॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन ऑल्सो बी सेंट विथ वन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस. जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है वो कोई भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ थ्रेड्स. ये नंबर ऑफ थ्रेड्स को जो कि बहुत ही जरूरी रहता है, दैट आर नीडेड, बहुत ही जरूरी रहता है सिस्टम के लिए, उसको क्या करता है, मिनिमाइजेस करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट वर्क्स. एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करता है. सो एन एप्लीकेशन क्रिएट्स एन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट यूजिंग द QSO क्रिएट IO कंप्लीशन पोर्ट. ये जो API मेथड होते हैं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो दिस API रिटर्न्स हैंडल, और ये जो API होते हैं रिटर्न हैंडल दैट कैन बी यूज टू शेड्यूल, जो कि पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए क्या होता है, यूज होता है. एंड वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट. जो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए जो रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो उस समय वेट करता है और API जो पोर्ट रहते हैं वो रिटर्न करते हैं. द एप्लीकेशन स्टार्ट्स एन इनपुट और एन आउटपुट फंक्शन. ये जो एप्लीकेशन रहते हैं वो इनपुट आउटपुट फंक्शन से स्टार्ट होते हैं. स्पेसिफाइंग एन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट हैंडल, और ये स्पेसिफाई करता है जो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट रहता है उसको. व्हेन द इनपुट आउटपुट इज कंप्लीटेड, जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड एन एप्लीकेशन डिफाइंड हैंडल इज पोस्टेड टू द स्पेसिफाइड इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट. तो ये क्या करता है, जब इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो इंफॉर्मेशन रहते हैं और जो एप्लीकेशन डिफाइंड रहते हैं उसको हैंडल करता है और पोस्ट करता है to the specified input output completion port. The post to the input output completion port wakes up exactly one of possibly many threads that are waiting. The application receives the following items. और जो एप्लीकेशन जो है वो फॉलोइंग आइटम्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. So, how asynchronous input output works? First, a buffer that was supplied on the original request. जो बफर रहते हैं वो एक्चुअल जो रिक्वेस्ट रहते हैं, जो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है सर्वर को, उसको क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ डेटा दैट वाज प्रोसेस्ड टू और फ्रॉम दैट बफर. ये जो लेंथ ऑफ डेटा होते हैं, कोई भी डेटा है उसका जो लेंथ रहता है उसको प्रोसेस करता है बफर में. जो बफर रहता है हमारे सिस्टम पे उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करने का काम करता है, वहां से ले जाना या वहां पर लाकर स्टोर करना. ये काम जो रहता है वो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट का रहता है. An indication of type of input output operation has been completed. जो इंडिकेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, किस टाइप का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है कंप्लीट हो रहा है, उसको इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है. देन फाइनल इज
application defined handle that was passed on the initial input output request. जो initial input output request होता है, ठीक है, जो उसमें पास होते हैं, उसको क्या करता है ये एप्लीकेशन जो है वो डिफाइन करता है, देन इफिशिएंटली उसको क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो इस तरह से एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। तो उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।